بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاؤں کے سبھی معتبر بزرگ اس وقت شرافت علی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مردوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سب کے بیچ شرافت علی جھک کے سر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہ منظر جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ شرافت علی کے گھر کا ہے۔ وقت شاید صبح صادق کا تھا، سورج نکل چکا تھا، گاؤں میں تو دن چڑھ آیا تھا، لیکن شرافت علی اور اس کی بیوی کو یوں مایوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندھیرا پڑ گیا۔ شرافت علی کے صحن میں چاروں طرف چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے بہت سے معتبر بزرگ وہاں بیٹھے تھے، سب کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی، اور ان سب کے درمیان شرافت علی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شرافت علی کا بڑا اور اکلوتا بیٹا ساجد بھی وہیں موجود تھا، اور کبھی اندر جاتا، پانی کا جگ بھر کے لاتا، گلاسوں میں پانی ڈال کر گاؤں کے بزرگوں کو پیش کرتا، تو کبھی تھوڑی دیر بعد اندر جاتا اور ٹرے میں رکھ کر چائے کے ایک کپ لا کر سب کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتا۔ اس کے چہرے پر بھی تھکن کے واضح اثرات دیکھے جا سکتے تھے، اس کے کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں شرافت علی کی بیوی اور دو چھوٹی بیٹیاں بھی دم سادے بیٹھی تھیں۔ کمرے کے ایک دروازے پر ایک پوشیدہ سی بوری پر پردہ لٹک رہا تھا، اور اس بوری کے پردے کی دوسری طرف سے کچھ آنکھیں باہر کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں خوف تھا، پریشانی تھی۔ شرافت علی کا سر جھکا ہوا تھا، کچھ دیر بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرتا اور نیچے صحن کی مٹی میں جذب ہو جاتا۔ سبھی مردوں کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک شخص بلند آواز میں بولا۔ اس کے چہرے اور سر کے بال تقریباً سارے سفید تھے، اور اس نے گرجدار آواز میں کہا، اب کیا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں؟ شرافت نے خاموشی سے سر اٹھایا اور خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اس بزرگ کے ساتھ بیٹھا ایک اور آدمی، نواز بھائی ذرا تسلی سے کام لو، گاؤں کے سبھی نوجوان گئے ہیں نا، کوئی نہ کوئی خبر تو آنے دو، پھر ہی تو پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ آدمی بے بسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تب تک دیر ہو گئی تو بس۔ ایک بار پھر خاموش ہو چکے تھے، اور شرافت کا سر ایک بار پھر جھک گیا۔ صحن اس وقت آدمیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایسے خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب لوگ اس وقت اسی گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ قبرستان ہے جہاں صرف مردہ لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے سر گئے، تبھی باہر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور تقریباً 10-15 لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے سرخ تھے اور جوش ان کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ان سب میں ایک شخص آگے بڑھا جو کہ کافی مضبوط جسامت کا مالک تھا، اس نے ہاتھ میں بندوق بھی تھام رکھی تھی۔ وہ بھاری آواز میں کہنے لگا، ہم نے گاؤں میں چاروں طرف دیکھ لیا ہے، گاؤں میں چپا چپا چھان مارا ہے، یہ بات طے ہے کہ یہ گاؤں سے نکل گئے ہیں۔ وہی سفید سر اور داڑھی والا بزرگ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب پھر کیا کیا جائے کہتے ہو بھائیو تم لوگ؟ تب صحن میں ایک دم شور شرابہ اٹھا، ہر کوئی اپنی بولی لگانے لگا۔ اس بزرگ نے ہاتھ بلند کر کے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کہا، ایسے تو کسی ایک کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے اپنی رائے دو بھائی۔ پھر ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، میرا خیال ہے گاؤں کے چاروں طرف پھیل جانا چاہیے اور ارد گرد کے گاؤں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اور میرا خیال ہے کہ بس اڈے پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو تیسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نہ صرف بس اڈے پر نظر رکھنی چاہیے بلکہ ریلوے اسٹیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فرار ہوئے تو گاؤں سے نکل گئے، اس کا مطلب ہے وہ کہیں اور تو جائیں گے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے وہ کسی بس یا ٹرین کا انتخاب کریں گے۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں گاؤں کی تلاش میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس اڈے اور ٹرین اسٹیشن پر جانا چاہیے، یقیناً وہ وہاں سے مل جائیں گے۔ اور 15 لوگوں کا گروپ جو ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، سب ایک بار پھر سے نکل گئے، لیکن اس بار جاتے ہوئے وہ مزید لوگوں کو ساتھ لے گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر سے شام ہو گئی، اور شام بھی دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ شرافت علی جو درزی کا کام کرتا تھا، پورے گاؤں کے کپڑے شرافت ہی سیا کرتا تھا، لوگوں کے تن ڈھک جایا کرتے تھے، لیکن آج سر جھکائے بیٹھا شرافت سوچ رہا تھا، میرا اپنا تن ننگا ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ گاؤں کی گلیوں میں کیسے سر اٹھا کر چلوں گا؟ میرا بیٹا وہ چودھری کی حویلی میں کام کرنے کیسے جائے گا؟ اور وہاں لوگوں کے
ऐसे लोगों का कैसे सामना करेगा। और मेरी बेटियां, दोनों छोटी बेटियां, क्या इनका रिश्ता हो जाएगा? मैं इन दोनों को ब्याह कर रुखसत कैसे करूँगा? लोग सवाल करेंगे, मैं इन सवालों का क्या जवाब दूंगा? और अगर मेरी बेटियों के रिश्ते हो भी गए तो इन्हें सारी उम्र ये ताना सुनने को मिलेगा, सब तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, बाकी नहीं रहा। शाम ढल चुकी थी और अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। शराफत की नज़रें और सहन में बैठे हुए बाकी तमाम मर्दों की नज़रें भी बाहर के दरवाजे पर जमी हुई थी, और इन मर्दों के अलावा उस कच्चे कमरे में बैठी हुई औरतों की नज़रें भी बोरी के पर्दे के पीछे से दरवाजे पर जमी हुई थी। शराफत की दोनों छोटी बेटियां सहमी हुई थी। इनके दिलो दिमाग में उस वक्त हजारों सवाल थे, लेकिन वो दम साधे बैठी थी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी माँ से कुछ पूछ सके। इसी लम्हे एक बार फिर से दरवाज़ा खुला, बहुत से लोग अंदर दाखिल हुए। फिर एक वजूद को धक्का देकर सहन के फर्श पर फेंक दिया गया। ये वजूद चादर में लिपटा हुआ था, जिसने अपना सर मुंह भी चादर के अंदर रखा हुआ था। ये शराफत की बेटी थी नौरीन। वो इस हालत में फर्श पर पड़ी रही। उसने सर उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सर तो झुक चुका था। शराफत खामोशी से आंसू बहाता हुआ ये मंजर देख रहा था। शराफत का बेटा कमरे के दरवाजे पर खड़ा दम साधे अपनी बहन पर नजरें जमाए हुआ था। उसी वक्त एक बुजुर्ग शख्स उठकर खड़ा हुआ और उसने बुलंद आवाज में गरजते हुए पूछा, लड़का किधर है? वो गुरु जो शराफत की बेटी को लेकर आया था। उसने अपने मुंह को ताव देते हुए कहा, उसको मारकर उसके घर के आगे फेंक आए हैं। बुजुर्ग आगे बढ़ा और उस नौजवान के कंधे पर थपकी देते हुए कहने लगा, शाबाश बेटा। उस नौजवान ने बंदूक की नाली से नौरीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अब इसका क्या करना है? उस बुजुर्ग ने एक बार फिर गरजदार आवाज में कहा, इसको भी मार कर वहीं फेंक आते, घर लाने की क्या जरूरत थी? उस नौजवान ने भी नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, शराफत चचा के सामना तो करना ही था ना एक बार। अब गांव के सभी मर्द जो इस वक्त शराफत के सहन में मौजूद थे, सबकी नजरें शराफत पर जमी हुई थी। उसी बुजुर्ग ने शराफत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ भाई बोल शराफत, क्या करना है? अब इस लड़की का मजमा एकदम चिल्ला उठा, शराफत से पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है शराफत भाई की वही बात है जो हम सब की है। उस बुजुर्ग ने एक बार फिर शराफत से पूछा, हाँ भाई शराफत, क्या कहते हो? शराफत ने दिल बड़ा किया, अपनी हथेली से आंखों में आए हुए आंसू साफ किए और चेहरे पर सख्ती के तासुरात जमाए और इस्बात में सर हिलाया। उस बुजुर्ग ने कहा, कर दिया फिर इसका काम तमाम। शराफत ने एक बार फिर इस्बात में सर हिलाया। उसी वक्त सहन के फर्श पर गिरी हुई इस मुर्दा कटरी में जैसे जान पड़ी। वो घसीटते हुए आगे बढ़ी और अपने बाप के पाँव पकड़ लिए। अब्बा माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब बस एक बार माफ़ कर दो, सारी ज़िंदगी दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूँगी, जिससे तुम कहोगे उससे शादी कर लूँगी। बस एक बार माफ़ कर दो अब्बा, इनको कहो मुझे जान से ना मारे। शराफत खामोश रहा, लेकिन उसके खामोश आंसू आंखों से गिरकर उसकी कमीज के दामन में जज्ब होते जा रहे थे। इसी वक्त वो बंदूक वाला नौजवान आगे बढ़ा और अपनी बंदूक की नाली से नौरीन की कमर पर टिकाई और कहने लगा, शराफत चचा बोलो, क्या कहते हो? शराफत ने मुर्दा से लहजे में बोला, तुम ठीक कहते हो भाइयों, इसे जान से मार देना चाहिए। तभी मजमे में से एक शख्स चिल्लाकर बोला, हाँ, इसे जान से मार दो, हम नहीं चाहते कि इसकी तरफ देखकर बाकी गांव की लड़कियां भी खराब हों। एक और शख्स बोला, हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों को बुरी सीख मिले। एक और शख्स बोला, अपनी जगह से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, बिल्कुल ठीक है कहते हो भाइयों, बुराई का खात्मा करना जरूरी है, वरना ये फैलती जाएगी। ये सब उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। सबने जोर शोर से नौरीन की जान लेने पर मुत्तफिक हो चुके थे। इसी लम्हे बोरी का पर्दा हटा, एक औरत बाहर निकली जिसने सर की चादर मुंह पर आगे फेंक रखी थी। उसने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए घुटने फर्श पर टिका दिया और मजमे के सामने सर झुकाकर कहने लगी, भाइयों रहम की अपील करती हूँ, माफ कर दो मेरी बच्ची को। जैसे तुम लोग कहोगे इसी से शादी करेंगे, सारी उम्र गुलाम बनकर रहेगी, इसकी जान बख्शी कर दो। मजमे में से एक शख्स कहने लगा, कमाल करती हो चच्ची, तुम भी इससे भी अब कौन शादी करेगा? दिल में जिगर बड़ा कर लो चच्ची, ऐसी औलाद जो आस्तीन का सांप हुआ करते हैं। क्या करना है? सांप को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका सर कुचल देना चाहिए। आस्तीन के सांप को आस्तीन में दोबारा जगह दोगी तो जब मौका मिलेगा तो फिर से डसेगी। शराफत की बीवी ने तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, भाइयों मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार रहम कर दो, माफ कर दो। इसे बहुत बड़ी सजा मिल गई है,
सबक मिल गया है, उसकी जान बख्शी करो। एक नौजवान कहने लगा, लेकिन चची तुम इसका क्या करोगी? इससे कोई शादी नहीं करेगा। इसी वक्त बुजुर्ग, जिसके सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद थे, वो कहने लगा, ठीक है भाइयों, शराफत की बीवी ने हाथ जोड़ दिए हैं तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया। रही बात इसके, इस लड़की से शादी कौन करेगा, तो मैं यहाँ भरे मजमे में ये ज़बान देता हूँ कि इससे मैं निकाह करूँगा और अभी इसी वक्त करूँगा। फिर आगे की कहानी मुख्तसर है। नौरीन का निकाह इसी वक्त अपनी से दुगनी उम्र के मर्द के साथ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शराफत का सहन खाली हो गया। तमाम मर्द एक एक करके अपने अपने घर को रुखसत हो गए। शराफत की बेटी नौरीन भी अपने शौहर करामुद्दीन के साथ रुखसत हो गई। करामुद्दीन सीना ताने आगे आगे जा रहा था और नौरीन सर झुकाए इसके पीछे चलती जा रही थी। शराफत का सहन खाली हो चुका था। दोनों मियाँ बीवी अब सर झुकाए बैठे थे। उस रात शराफत के घर में कोई नहीं सोया। शराफत की बीवी आंसू बहाते हुए कमरे के कोने में पड़ी एक पेटी को देख रही थी, जिसमें कई सालों से वो नौरीन के लिए बिस्तर, छोटी मोटी चीज़ें बनाकर रखी थी। उसे क्या मालूम था कि बेटी के लिए बनाई गई ये चीज़ें यूं ही पड़ी रह जाएंगी, उसकी बेटी के नसीब में नहीं होंगी। नौरीन का निकाह हो चुका था, वो अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई। जिंदगी फिर से रवा दवा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने मामूल पर आता जा रहा था। करामुद्दीन, जिसकी पहली बीवी गुजर चुकी थी, बच्चे तमाम शादीशुदा थे, अब वो नौरीन से निकाह कर चुका था। नौरीन बस सर झुकाए उसकी हाँ में हाँ मिलाती। नौरीन की शादी को 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद उसके शौहर करामुद्दीन को फालिज और वो बिस्तर का होकर रह गया। अब नौरीन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी। दिन रात वो अपने शौहर की खिदमत करती, उसको बिस्तर पर बिठाकर करवट देना, अपने हाथों से खाना खिलाना, इसके कपड़े तब्दील करना और हत्ता कि बिस्तर पर ही हाजत से फारिग करवाना भी नौरीन की जिम्मेदारी थी। करामुद्दीन के 2 बेटे थे जो जवान थे, शादीशुदा थे, बाल बच्चे वाले थे, लेकिन वो सब अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। और करामुद्दीन तो इनकी बीवी तो शौहर की बीमारी में ही बीवी का फर्ज था कि शौहर की खिदमत करना, उसके तमाम काम अपने हाथों से निपटाना। नौरीन चुपचाप ये सख्त ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। शुरू में तो नौरीन की माँ इससे मिलने के लिए नहीं जाया करती थी। बाप ने भी इससे मुंह मोड़ रखा था, लेकिन नौरीन के निकाह के 1 साल बाद दोनों मियाँ बीवी ने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया और इनकी माँ अब कभी कभार उसके पास जाती और खामोशी से अपनी बेटी के बेरंग और बेरौनक चेहरे को देखती और कुछ देर वहाँ बैठकर फिर आंसू बहाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाती। और नौरीन वो दिन रात बस अपने शौहर की खिदमत करती, उसके बिस्तर साफ करती और फिर रात होते ही वो निढाल होकर सो जाती। अब यही इसकी ज़िंदगी है दोस्तों। प्यार मोहब्बत की ये दास्तान अब से नहीं है, शुरू दिन से है, जब ये दुनिया कायम हुई और तब तक रहेगी जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ हुदूदें बनाई हैं और हमें इन हुदूदों में रहना चाहिए। इसे इंसान की मजबूरी समझ लीजिए या फिर वक्त की ज़रूरत, लेकिन ये हुदूदें, पाबंदियाँ हमारे अपने लिए फ़ायदे के लिए और हम इन्हें फलांग नहीं सकते। और फिर दीन के बाद हमारे माशरे में के भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, जिस माशरे में हमें रहना है, जहाँ सर उठाकर जीना है, यहाँ हमें लेन देन करना है, जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हमें इस माशरे के मुताबिक चलना पड़ता है। शुरू से लेकर आज तक नज़र दौड़ा कर देख लीजिए। परवरदिगार की लगाई गई पाबंदियाँ, दीन की बनाई गई हुदूदें और माशरे के बनाए गए उसूल और ज़वाबित के ख़िलाफ़ जो इंसान कदम उठाता है, रुसवाई का उसका मुकद्दर बनती है। और ये एक घर की कहानी नहीं, ऐसी बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बेटियां हैं जो शैतान के बहकावे में आकर ये नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए अपनी मर्जी की करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माशरा इन्हें कबूल नहीं करता। इन्हें बागी करार दे दिया जाता है, इनके सर कलम कर दिए जाते हैं, इनकी सांस की डोरी काट दी जाती है और इन्हें खामोश करवा दिया जाता है, क्योंकि सरकशी किसी को पसंद नहीं, ना परवरदिगार को और ना माशरे को, ना माँ बाप को। और यकीन जानिए ये हुदूदें हमारे भले के लिए। एक पल को ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर माशरे में ये रिवाज आम हो जाए कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी करने लगे, औलाद माँ बाप की बात को अहमियत ना दे, जो दिल चाहे वो करें, जहाँ दिल चाहे वक्त गुजारें, जिसके साथ दिल चाहे आए जाएं, शादी ब्याह में कोई रुकावट ना हो, तलाक पर कोई पाबंदी ना हो, तो ज़रा सोचिए कि माशरा क्या रुख इख्तियार कर जाएगा। क्या ये माशरा
اور اس میں پھیلنے والی برائیاں قابو میں رہیں گی۔ ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جو شاید قابو میں نہ آ سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، لیکن جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے، اور یہ دنیا تب تک قائم رہے گی جب تک دنیا میں اچھائی قائم رہے گی۔ اس لیے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، ہماری اولادوں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔